Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नंबर 3 के अंदर देखना है चैप्टर नंबर 3 का जो वेटेज है वो चैप्टर नंबर 2 की तरह 12 मार्क्स का ही है। 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 12 मार्क्स। तो चैप्टर नंबर 3 का वेटेज भी 12 मार्क्स का है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन एफ, इस तरह हर एक सेक्शन के अंदर एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बेटा। तो फर्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आउट ऑफ टू वेरिएबल्स हैविंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, the causal variable is called independent variable. It is denoted by x. तो हमारे पास x and y टू वेरिएबल होंगे जिसमें से हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल, आउट ऑफ टू वेरिएबल्स हैविंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, द इफेक्ट वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज डिनोटेड बाय y। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसे हमें क्या कहेंगे बेटा, y कहेंगे। तो यहाँ हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट बेटा, रिग्रेशन। ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। अगेन याद रखना डेफिनेशन, ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन मॉडल 1 मार्क्स में 100% आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना है बेटा। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ए रिग्रेशन मॉडल expressing the depend variable y as a linear function of independent variable x is called a linear regression model. It is of the following form. याद रखना, linear regression model एग्जाम में बोले तो आपको लिखना है y is equal to alpha plus beta x plus u. Again y is equal to अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। आप अल्फा और बीटा के बदले ए एंड बी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी कांस्टेंट वेरिएबल ही है, इसलिए बेटा। तो 1 मार्क्स में है तो ये आपको लिख के नीचे एक्सप्लेन करना है कि y इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फा बीटा दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं एंड u जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ऑफ मॉडल। अगेन बेटा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, a regression model expressing the dependent variable y as a linear function of independent variable x is called linear regression model. It is of the following form: y is equal to alpha plus beta x plus u, where y is equal to dependent variable, x is equal to independent variable, alpha beta are constants and u is distribution variable of model. u को हम ई भी कह सकते हैं, u मतलब एरर, तो u इज इक्वल टू हम ई भी लिख सकते हैं और e इज इक्वल टू होगा बेटा y माइनस वाई कैप। ई का मतलब क्या होता है, y माइनस वाई कैप।
नेक्स्ट बेटा, फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन. फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन. A method to obtain the regression line that gives the best estimated relation between two correlated variables is called fitting of regression line. Again, a method to obtain the regression line that gives the best estimated relation between two correlated variables is called fitting of regression line. There are two methods of fitting regression line. First, scatter diagram method and second, least square method. 1 मार्क में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना बेटा. There are two methods of fitting regression line. First, scatter diagram method and second, least square method. Okay बेटा. Scatter diagram method. So this method of fitting a regression line is simple and speedy. It is subjective method and does not guarantee the best estimate of the dependent variable. Hence the least square method is used to obtain the best fitted regression line. Most time this question beta, least square method is used to obtain a best fitted regression line. Again, least square method is used to obtain a best fitted regression line. Okay बेटा, तो least square method, if the equation of best fitted regression line of y on x is y cap equal to a plus bx. y cap, cap का मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू नहीं, एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाना. तो y cap is equal to a plus bx, then the values of constant a and b are obtained by method of least square such that the सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, बराबर है. तो ये आपको देखना है नहीं, वो जब आएगा तब डिस्कशन करेंगे हम. सेकंड बेटा, लीस्ट स्क्वायर मेथड. ओके, नेक्स्ट बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन. कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को हम बी कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा? बी. और y ऑन x है तो आप बी वाई एक्स भी लिख सकते हो. ओके बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, the estimated change in the value of dependent variable y due to a unit change in the value of independent variable x is called the regression coefficient of y on x. It is denoted by b or byx. b बोले तो भी चले, byx बोले तो भी चले. ओके ओके बेटा, in y is equal to a plus bx, a is equal to intercept of regression line and b is equal to slope of the regression line. आपको slope of the regression line बोला जाए तो भी आपको पता चलना चाहिए कि वो हमारे पास b की वैल्यू है. क्लियर बेटा? ओके. अब बेटा हमें यहाँ फाइंड करना है, हमारे पास रिग्रेशन लाइन, हमें y ऑन x फाइंड करनी है. कौन सी? y ऑन x. तो y ऑन x जो रिग्रेशन लाइन हमें फाइंड करनी है वो हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड से देखना है. तो इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x,
तो बेटा हमारी फॉर्मूला है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो पहले हमें बेटा वैल्यू बी फाइंड करनी होगी। वाई कैप इज इक्वल टू वाई ऑन एक्स हमें फाइंड करना है। तो वाई ऑन एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो पहले हम वैल्यू बी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? तो वैल्यू बी जो हमें फाइंड करनी है, वो वैल्यू बी फाइंड करने की हमारे पास कार्ल पियर्सन की 3 फॉर्मूला है। एक, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर स्मॉल, तो हम लिखेंगे बेटा कि b इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अगर x एंड y की जो वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार आर इंटीजर्स, मतलब पॉइंट में नहीं है, तो हमारी फर्स्ट फॉर्मूला आएगी b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो अगेन बेटा हमें जब y ऑन x फाइंड करना है, तो अगर वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार आर स्मॉल, तो हम ये जो सेकंड फर्स्ट नंबर वाली फॉर्मूला xy वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे। वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार आर इंटीजर्स, तो हम b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर्स, तो हम बेटा हमारी जो शॉर्टकट मेथड है वो शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। b इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये जो हमने ये 3 फॉर्मूला देखी वो लीस्ट स्क्वायर मेथड की है। कौन सी बेटा? लीस्ट स्क्वायर मेथड की है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लीस्ट स्क्वायर मेथड के सम के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। तो इतना होमवर्क लिख के आपको सब्जेक्ट टीचर को व्हाट्सएप करना होगा। ओके बाय बेटा।